Awesome. So here's the video. Here is the video. So yep, my name is Mohammed Ibrahim, and I'm working as a business intelligence lead at Credillo Technologies, and also as a business BI lead at Frontier Intelligence. FTI, Frontier Technology Institute. So the purpose of today's session is we are going to explore the Power BI desktop and try to create some HR related analytics dashboard and check it out how a dashboard can be easily created using a Power BI and how analytic dashboard can be easily managed with the Power BI. So yep, what I'm seeing is that I have two participants with me. One is Mohammed Zubair and other is Faisal Said. So can I get your short introduction from your side? So that will be more easier for me to pass on the information if you ever worked with the Power BI previously or you are learning it for the first time, and what is your background. So let's start with the Faisal. What about you? Yep, Faisal. Okay, so no problem. Without wasting the time, let's go with the session, what we are going to do today. So let me share my screen. We are going to create a data analytics based dashboard using a Power BI, which is the fast way to do or perform any type of things. So let me share my screen. And what we have today, we have an Excel file, and that contains the dummy data of the employee records. So what dummy data that this Excel file contains? It contains some column named as employee ID. Every employee ID is unique, as we assume, and it should be understandable that every employee ID will be unique. The other thing is employee name. So employee name cannot be a unique. There is a lot of chance कि एक नाम की मेरी कंपनी में दो लोग काम कर रहे हो. But to make them unique, I will use their employee ID as a unique key or a unique category. Then the third column we have will be the category. कि क्या उनकी कंपनी में क्या like category क्या even they are a permanent employee or they are on a contract employee. The next one we have a functions. Function means they are from which department they are belonging. Grade, which grade they are on working, group, city, from which city they are belonging, country, specifically they are from the Pakistan, and then it will be a concatenate field of city and country. Country code, gender, even they are a male or a female, birth date, what is their birth date, appointment date, when they join the company, month number, we break out the appointment dates into a month number, month and quarter into a date dimensions. So it's like a month number and a month on which they join, the quarter on which they join, and the year on which they join. The same for the confirmation date, when they got confirmation after the probation period. Are the employee get confirmed or not? There will be a flag in the confirmed column. The flag is yes, that means this employee is confirmed, and the flag is no, that means this employee is not confirmed yet. The retirement date, when will they going to be retired, and then the confirmation due date. अगर किसी की जो है like confirmation नहीं हुई है तो उसकी confirmation due date क्या है, क्या थी, ठीक है, and the FTE count and the count of that person. The count of that person will be helpful to use the count at the total of the person. So it depends on me whether we can use the employee ID as a count or we can use a count column as a sum on the Power BI desktop. So yep, another thing that we are going to discuss before starting this session. So this is the dashboard we are going to target to design today. Let me open this. So yeah, this is a dashboard design checklist that we are going to follow and what we are trying to do or achieve during this designing purpose. So the dashboard name, we are going to decide our dashboard name. That will be the HR Analytics dashboard. Dashboard goal. What is the dashboard goal? What are the main KPIs that we are going to target today? So I want to see is what is the trend of my company hiring things, कि मैं किस महीने में भी ज़्यादातर लोगों को hire out करता हूँ ताकि मैं उसकी basis के ऊपर decision makes कर सकूँ. What are the decision that I can make
क्योंकि मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि अगर मैं जून या जुलाई के महीने में ज्यादा हायरिंग करता हूँ तो देयर विल बी अ गुड कि मैं 2 to 3 months और वेट करता हूँ एंड आई विल बी वेट। सो इस वेट का मुझे क्या फायदा होगा, बिकॉज आई मोस्टली नो दैट कि जून या आफ्टर जून एंड जुलाई आफ्टर समर सेशंस there will be a lot of fresh graduate that every university in Pakistan produces. So if I take some steps to wait for these 2 or 3 months, तो उसके बाद there will be a lot of chance that I get the productive employees in a low wages, क्योंकि freshies जो होते हैं तो freshies की wages उतने high नहीं होते। So इस तरह के कौन सा डिसीजन मेक सब कर सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन माय कंपनी, व्हाट इज द डिपार्टमेंट वाइज काउंट इन माय कंपनी, तो इस सब क्या पोजीशंस चल रही है, मंथ वाइज काउंट मेरे पास क्या चल रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें हम लोग जो है अपने डैशबोर्ड में देखेंगे। डज इट फोकस ऑन द गोल, जो हमारा गोल हम डिजाइन करने जा रहे हैं, क्या हमने जो डैशबोर्ड रेडी किया है क्या वो उन गोल्स को फोकस कर रहा है, is everything is at a glance, क्या मैं वन ग्लांस में देख क्या मुझे जो बिजनेस नॉलेज चाहिए क्या मुझे उस डैशबोर्ड से मिल रही है, इज इट सिंपल इनफ, क्या वो सादा और सिंपल इनफ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, आर द एलिमेंट्स अलाइन, एलिमेंट्स की प्रॉपर अलाइनमेंट हुई हुई है, इज इट कंसिस्टेंट, क्या कंसिस्टेंसीज है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी जगह पे जो है कोई और चार्ट यूज कर रहा हूँ, किसी जगह पे कार्ड का मैंने सिंटैक्स चेंज कर दिया, किसी जगह पे मैंने अपने हेडिंग सिंटैक्स चेंज कर दिए। Are the relevant information highlighted? Is it clear? Do the chart start from the zero or are the numbers shortened? कि अगर मेरे पास कोई sum of cards है या कोई numbers हैं तो क्या वो numbers shorted down हुए हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने millions को complete number में दिखा दिया which will make difficult me or our top management to read out। तो कुछ इसी तरह की हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। The another thing that what I feel is I'm missing is that is a dashboard design। So we are going to target this dashboard today। हम इस तरह का कोई डैशबोर्ड बनाने जाएंगे आज के सेशन के अंदर। What this dashboard is conveying, इसके अंदर जो 4 मेन KPIs शो हो रही हैं, which is the first one is the head counts by group, ठीक है, the first one is the like male and female wise gender wise distribution in my company, head counts by group, कितने किस ग्रुप के अंदर मेरे लोग मौजूद हैं, the third one is the monthly head counts, how many people are joining the months to me, and the fourth one is head count by functions, function wise मेरे पास head counts कितने मौजूद हैं। तो कुछ डिजाइन स्ट्रक्चर्स इस तरह के होंगे आज की इस वेबिनार के अंदर। या ओके, इज इट क्लियर नाउ फैसल? Okay, so moving forward, to prepare this, everyone should have okay, so for the next step, we have a Power BI desktop. Let's talk about the Power BI desktop and what is a Power BI desktop. Power BI desktop is an like a development environment जहाँ पे आप अपनी चीजों को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने डैशबोर्ड्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है, और फिर आप जब उनको फाइनली डिजाइन आउट कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so जब आप let me know Faisal if it is clear now, या अभी भी डिस्टॉर्शन है? ओके, सो जब हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं तो पावर बीआई डेस्कटॉप इज एनवायरनमेंट वेयर वी डिजाइन अवर डैशबोर्ड्स, जहाँ पे हम लोग अपने डैशबोर्ड्स की डिजाइनिंग या डेवलपमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। वंस दैट डेवलपमेंट हैज बीन कंप्लीटेड देन वी विल publish that dashboard into our Power BI services. So
या डैशबोर्ड कैन बी इजीली डेवलप्ड ऑन द यूजिंग द पावर बीआई डेस्कटॉप. उसको हम लोग अपने लैपटॉप्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं. द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द लैपटॉप इज यू नीड टू 4 GB रैम, ताकि एक स्मूथ परफॉर्मेंस आपकी हो सके. एंड यू नीड जस्ट लाइक 500 MB और 600 MB इन योर डिस्क स्पेस. सो यू विल गेट इट easily and free from the Microsoft platform as a Power BI desktop. हाँ, there will be a problem. There is a problem कि Power BI जो है Mac OS के ऊपर आपको नहीं मिलेगा. Power BI सिर्फ और सिर्फ आपको जो Windows प्लेटफॉर्म को मिलेगा, क्योंकि ये Microsoft की प्रोडक्ट है. So yeah, if you are able to see my screen, तो यहाँ पे मैंने भी स्क्रीन शेयर की हुई, तो that is the Power BI desktop that I opened. So यहाँ को थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को जो डिस्कस कर लेते हैं पहले कि what is the Power BI structure. तो यहाँ अगर आप मोस्ट लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास 3 तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं. द फर्स्ट वन इज अ विजुअलाइजेशन पेन, द अदर वन इज अ टेबल पेन, एंड द थर्ड वन विल बी अ मॉडल पेन. कि मॉडलिंग आप यहाँ पे कर रहे होते हैं, उसके बाद जो मॉडल आपने क्रिएट किया होता है उसके आप डाटा को जो है इधर व्यू कर सकते हैं. एंड देन फाइनली यू विल हैव अ विजुअलाइजेशन एरिया जहाँ पे आप अपनी विजुअलाइजेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं. If I came to the most right side of this Power BI desktop, so you will able to see the 3 panes here. The first one is a field, the second one will be the visualization, and the third one will be the filters. Fields ये वो जगह है जहां पे आपको अपने सारे टेबल्स और उनके कॉलम नेम्स नजर आ रहे होंगे. Besides this, सेकेंड वन इज द विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन के अगर आप देखें तो 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में क्या है, जहां से आप विजुअलाइजेशंस को सेलेक्ट कर रहे होते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट विल बी द जहां पे आप अपनी विजुअलाइजेशन को एडिट कर रहे होते हैं, या आप उसको कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, या फॉर्मेट अप्लाई कर रहे होते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फॉर्मेट पेन्स इनके मौजूद. एंड द थर्ड वन विल बी द फिल्टर पेन. कि अगर आपने अपने डैशबोर्ड लेवल पे, अपने डिजाइन लेवल पे, अपने ग्राफ लेवल के ऊपर कोई भी फिल्टर अप्लाई करना है, सो देन यू विल अप्लाई फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ से आप अपने फिल्टर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं. पावर बी एंड टैबलो में थोड़ी सी जो है डिफरेंस इस चीज का कि टैबलो में फॉर ईच विजुअल यू नीड टू प्रिपेयर अ शीट, लेकिन पावर बीआई में ऐसा नहीं होता. पावर बीआई में आप एक ही पेज के ऊपर जो अपने पूरे के पूरे डैशबोर्ड को जो क्रिएट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट सम अदर डैशबोर्ड और अ टूल टिप, तो यू जस्ट नीड टू प्रेस द प्लस साइन एंड जस्ट वांट हैव टू ऐड whatever the pages you want to add. So let me delete. Okay, so let's talk about the top level bar here. So the first one, we have the get data point. So Power BI allows us to join our data from the many sources within the present in the database. And एक और बड़े मजे की चीज ये अच्छी है Power BI के मुतालिक कि they throw their updates once or 2 times in a month. So that means कि Microsoft is taking a lot of interest into this product, और वो टाइम टू टाइम इसको इंक्रीज कर रही है ताकि यूजर्स इजीली फैसिलिटेट हो सके इनसे. सो ये बहुत अच्छी चीज़. अगर आप यहाँ पे देखें तो गेट डाटा प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे पास मल्टीपल, बल्कि लाइक मैनी सोर्सेस आ रही हैं जिनसे मैं अपने डाटा को कनेक्ट कर सकता हूँ. बट फॉर टुडे सेशन वी हैव अ प्रिपेयर्ड डाटा इन अवर एक्सेल साइट. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट जो हमने डाउनलोड की हुई है, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था एचआर रिलेटेड, हम उसको जो है अपलोड करेंगे. सो टू अपलोड दैम व्हाट I need to do is I just click on the get data, क्योंकि मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट के अंदर डाटा मौजूद है. सो यहाँ पे मैं आऊँगा, मेरे पास डाउनलोड में अगर आप देखें तो एच आर डमी के नाम से मेरी वो शीट मौजूद है, उसको मैंने इंक्लूड कराना है जस्ट. अब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो एच आर डमी की शीट को मेरी एनालाइज करना शुरू कर देगा. वंस द एनालाइजेशन इज कंप्लीट, तो ये मुझे जो है एक न्यू पेन के ऊपर जो देगा, ताकि मैं रिव्यू कर सकूँ कि व्हाट डाटा दैट आई गेट. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 2 शीट्स आ रही हैं. अब अभी ये डाटा मेरा लोड नहीं हुआ, ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि आपकी ये शीट्स मुझको मिल रही है, इन शीट्स के अंदर ये डाटा मौजूद है, आप कौन सी शीट को लोड करना चाह रहे हैं. अगर मैं दोनों को लोड करना चाह रहा हूँ तो देन आई विल क्लिक ऑन द बोथ. अगर मैं किसी एक को लोड करना चाह रहा हूँ तो मैंने जस्ट एच आर डाटाबेस को ऐसे लोड करना है, तो मैं एच आर डाटाबेस को सिलेक्ट करूंगा, और मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो अपने डाटा को एक बार रिव्यू कर सकता हूँ कि दैट द डाटा गेट्स प्रॉपरली लोडेड और नॉट. सो मुझको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही. मेरे पास जो कॉलम्स मैंने वहाँ पहले शीट पे रिव्यू किए थे, वही सारे कॉलम्स जो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहे हैं. तो मैं क्या करूँगा, इस डाटा को अब लोड कर दूंगा. जैसे ही मैं इस डाटा को लोड करूँगा,
तो ये डाटा को इंपोर्ट करेगा अपने पास। आप देख रहे हैं क्रिएटिंग अ कनेक्शन मॉडल, ये कनेक्शन मॉडल इसने बनाना शुरू कर दिया है। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ, जब तक ये डाटा लोड कर रहा है? अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और द थिंग सीम्स क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लास आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम वो क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाए, कंफ्यूजन अबाउट द डाटा लोडिंग और एनी अदर थिंग, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट। सो अब मैं देख सकता हूँ कि टॉप राइट मोस्ट साइड पे मेरा वो टेबल जो मैंने इंक्लूड कराया था वो लोड हो चुका है। तो द टेबल नेम इज HR database एंड द फील्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट टेबल आर ऑल द फील्ड्स दैट आई वांटेड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कुछ कुछ के ऊपर मुझे सिग्मा साइन नजर आ रहा है, सबमिशन का साइन नजर आ रहा था। व्हाट दैट सबमिशन साइन शोज दैट इसने ऑटोमेटिकली मेरी फील्ड को डिटेक्ट किया। उस फील्ड के अंदर जो इसको नजर आई फील्ड एज एन इंटीजर, उनको इससे शो करा है कि इनके ऊपर मैं कोई भी समेशन फंक्शंस या मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज दीज फील्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर्स। वापस चलते हैं हमारे इन शुरू में 3 पेज का हमने डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन विल बी द मॉडलिंग पार्ट। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे HR डाटाबेस के नाम से मेरा एक मॉडल का टेबल जनरेट हो गया। अब अगर मुझे इसके साथ कोई भी चीज़ लगानी है, कोई दूसरा टेबल ऐड ऑन करना है, तो मैं यहाँ पे उस टेबल को ऐड ऑन करूंगा एंड उस टेबल को जाके मैं ज्वाइन कर दूंगा। जहाँ जो अभी आप देख रहे हैं मैनेज रिलेशनशिप का मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं अभी डिसेबल आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव ओनली वन टेबल इन माय मॉडल पेन। अगर मेरे पास कोई दूसरा टेबल भी होता है इस मॉडल पेन में तो मेरे पास ये मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन जो इनेबल हो जाता है, एंड देन आई जस्ट नीड टू ज्वाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेग्रीगेटेड कीज। जो भी उनकी कीज थी प्राइमरी और फॉरेन की, उनकी बेसिस के ऊपर मैं उनको ज्वाइन कर देता ताकि मेरा मॉडल जो है इंटीग्रिटी परफॉर्म कर सके, इंटरेक्टिव हो सके। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव अ डाटा पोर्शन। तो अगर आप डाटा पोर्शन में देखें तो हमारे पास HR का जो टेबल था उसका डाटा मुझे यहाँ पे शो ऑफ हो रहा होगा, ताकि मैं उसको एनालाइज कर सकूँ या मैं उसको देख सकूँ। यहाँ मेरे पास ये इसका आप देख सकते हैं कि डाटा आ रहा है, ठीक है। वॉट इफ आई नीड टू मेक एनी चेंजेस इन माई डाटा, मुझे चाहिए कि मैं इस डाटा के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ या मुझे इसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वॉट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डाटा। और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन खुल जाएगी। आर यू ऑल एबल टू सी माई पावर क्वेरी स्क्रीन जो मेरी अभी ओपन हुई है, या सिर्फ वही वाली? अगर स्क्रीन शेयर, अच्छा आई थिंक नहीं आ रही। सो मेरे पास ये पावर क्वेरी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सो हेयर आई कैन मेक एनी चेंजेस दैट आई वांट। मैं अगर कोई सी भी चेंजेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ। वॉट, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं चाह रहा हूँ मेरी एक कॉन्कैटिनेट की फील्ड है। अब इस कॉन्कैटिनेट की फील्ड को मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा सेपरेशन। तो आई कैन मेक द चेंजेस यूजिंग द पावर क्वेरी हेयर नाउ। सो यहाँ मैंने इसको ये चीज़ बताई कि आई वांट टू स्प्लिट दैट कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ डेलीमीटर। डेलीमीटर इज कॉमा, ठीक है, और कॉमा की बेसिस के ऊपर मैं इनको स्प्लिट करना था। जैसे ही मैंने इस पर ओके क्लिक किया तो अब आप देखिए इसने क्या किया, कॉन्कैटनेट 1 और 2 को दो हिस्सों में ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा स्प्लिट कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? तो अब सम टाइम्स होता है कि आपको जो सीक्वल के थ्रू लोग कर रहे होते हैं, पाइथन के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, आप अगर कोई डाटा चेंजेस करना चाहते हो तो यू कैन डू इट फ्रॉम द बैक एंड यूजिंग अ पावर क्वेरी। जब आप पावर क्वेरी के थ्रू कोई भी चेंजेस करना है, आपको कोई कॉलम रिमूव करना है, आपको कोई रॉ रिमूव करनी है, लेट्स टेक एग्जाम्पल, हम एक रॉ रिमूव करके यहाँ से देख लें, कॉलम रिमूव करके यहाँ से हम देख लेते हैं। व्हाट आई फील इज देयर इज नो नीड ऑफ FT काउंट इन माई टेबल। व्हाट आई डू इज मैं क्या करूँगा, मैंने इस कॉलम को रिमूव कर दिया अपने इस टेबल स्ट्रक्चर से ना, ठीक है। और जो जो स्टेप्स मैं यहाँ लेता जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो मेरे अप्लाइड स्टेप्स, अगर मैं किसी स्टेप्स को जो रिवर्ट बैक करना चाहूँ तो आई जस्ट नीड टू प्रेस द क्रॉस फ्रॉम हेयर एंड दैट स्टेप वुड गो रिवर्ट बैक। अभी ये सारी चीज़ मेरे फाइनली हो तो गई है, लेकिन व्हाट आई नीड टू डू इज अगर मुझे किसी कॉलम की डाटा टाइप चेंज करनी है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो आई ऑल्सो कैन चेंज द डाटा टाइप फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ से इसकी डाटा टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। तो
इट विल गिव सम एरर ऑन चेंजिंग द डेट टाइप, तो मैं इसको अभी टेक्स्ट में ही रखता हूँ, मैं इसको भी नहीं छेड़ा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे कॉलम्स की डाटा टाइप्स के ऑप्शन भी मेरे पास आ रहे हैं। ऑसम। अब हम चल रहे हैं कि हमने जो चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, आई वांट टू सी देयर इम्पैक्ट ऑन माय डैशबोर्ड साइड, वहां पे जो डाटा लोड हुआ हुआ है। तो यहाँ अगर मैं आऊँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज क्लोज एंड अप्लाई, द सेकंड वन इज जस्ट अप्लाई एंड मैं अपनी वर्किंग को फिर आगे कंटिन्यू रखूँ पावर क्वेरी में, एंड द थर्ड वन इज जस्ट क्लोज। तो मैंने जितनी भी चेंजेस किए हैं वो सारी चेंजेस रिवर्ट बैक हो जाएंगी, और जो इनिशियल स्टेज थी मैं वहां पे आगे वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैंने जो चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो, और जब फिर उसके बाद ये चीज़ बंद भी हो जाए ताकि मैं अपने डैशबोर्ड पे वर्किंग शुरू करूँ। तो आई जस्ट क्लिक ऑन द क्लोज एंड अप्लाई। सो व्हेन आई क्लिक द क्लोज एंड अप्लाई, तो इसने क्या किया, वापस उस मॉडल को रिफ्रेश किया। और अब अगर मैं भी देखूं, तो अब यहाँ पे मुझे वो एफ टी ई काउंट का जो है वो कॉलम नहीं नजर आएगा, क्योंकि उस एफ टी ई काउंट के कॉलम को मैं डिलीट कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे दो कॉलम्स नए देख रहा हूँ, जो कि वहां मैंने पावर क्वेरी के लेवल के ऊपर उसको स्प्लिट किया था। द फर्स्ट वन इज कॉन्कैटनेट वन, द अदर वन इज कॉन्कैटनेट टू। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, ये तो अभी हम डाटा पेन के अंदर, तब हमारी विजुअलाइजेशन स्क्रीन के ऊपर आता है, विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अवर दिस थिंग, इस सैंपल के मुताबिक सबसे पहला अगर मैं केपीआई देखूं तो माय फर्स्ट केपीआई वाज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग द डायमेंशन ऑफ देयर जेंडर। मुझे जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है मेरी कंपनी के अंदर, और मुझे इसके लिए जो है डोनट चार्ट की रिक्वायरमेंट है। सो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ मेरे पास जो डायमेंशन है, द फर्स्ट वन इज जेंडर। मैं जेंडर के ऊपर जस्ट जाऊंगा, इसके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। सो व्हेन आई क्लिक डाउन द, या मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये क्या करेगा, जेंडर का जो कॉलम था वो लेके मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास दो जेंडर्स हैं, द फर्स्ट वन इज फीमेल एंड द अदर वन इज मेल। अब ये अभी मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन व्हाट आई नीडेड टू प्रिपेयर फ्रॉम इज कि मुझे इससे डोनट चार्ट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ मेरे पास जो विजुअलाइजेशन पेन है, मैं यहाँ से आके उस डोनट चार्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने डोनट चार्ट को सिलेक्ट किया, तो अभी आप देखें सिर्फ इसने अपने लेजेंड्स ऑन किए हैं, लेकिन कोई चार्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे डोनट चार्ट में अंडरस्टैंडेबल चीज है कि आई हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन एंड आई हैव एटलीस्ट वन मेजर। तो एक कोई ना कोई इसके अगेंस्ट में मेजर होना चाहिए जिसको मैं काउंट करने जा रहा हूँ। तो व्हाट मेजर डू वी हैव हियर इज, वी हैव अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी। आई जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप द वैल्यू एम्प्लॉय आईडी इन द वैल्यू बार। तो जैसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू बार के अंदर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आप देखें इसने ऑटोमेटिकली इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जो है काउंट का फंक्शन लगा दिया। सो on clicking here, I got the option whichever function that I need to, whichever the aggregated function I need to apply on that field. So यहाँ पे मुझे employee के counts करने थे, तो I have applied employee counts. Count distinct भी मैं कर सकता था अगर repetitively मेरे पास employees आ रहे होते। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चंस क्लियर है अभी तक कि किस तरह से ग्राफ्स प्रिपेयर हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थिंग? पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, या वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन? ओके, सो अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग पेन्स को देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ग्राफ और जी, ऑसम। सो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के बारे में बात की। अब इन ग्राफ्स की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि व्हाट फॉर्मेट दैट वी नीडेड। सो व्हाट आई नीडेड इज कि इसको मुझे नाम देना है। फर्स्ट करें, इट्स लाइक मुझे कहा गया कि यार इस ग्राफ का नाम होना चाहिए एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर। ठीक है, सो आई नीड टू चेंज इट्स टाइटल। मैंने कहा ये टाइटल जो होना चाहिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए और इसके टाइटल जो वाइट से लिखा होना चाहिए। मैंने कहा परफेक्ट। सो मुझको ये चीज़ कही गई कि यार जो डोनट चार्ट है इसकी कलर डिस्ट्रीब्यूशन जो थोड़ी सी चेंज कर देनी है और इसको जो ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन के ऊपर लेके आने में आएगा। परफेक्ट। मुझसे ये कहा गया कि जो जेंडर है, ये जेंडर का जो लाइक लेजेंड्स है, लेजेंड्स जो राइट साइड पे नहीं होनी चाहिए, डाउन पोजीशन पे होने चाहिए। मैंने कहा ओके। एंड मुझसे एक और चीज ये कही गई कि जो भी काउंट ऑफ मेरे पास एम्प्लॉयज हैं वो ऑन द सेंटर ऑफ दिस जेंडर आने चाहिए, मतलब इस डोनट चार्ट के आने चाहिए। मैंने कहा परफेक्ट। सो
टू मेक प्रिपेयर ऑन दीज थिंग्स। सो यहाँ मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे पास एक एरिया होता है जहां से हम फील्ड्स को मैनेज कर रहे हैं। सेकंड पेन हियर इज वी हैव अ फॉर्मेट पेन। हम फॉर्मेट पाएंगे। अब आए इसको स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं, व्हाट डज अ फॉर्मेट पेन डू। सो here we have a first one is journal। तो journal will decide the position of that chart, जिसको आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जैसे जैसे मैं इसकी वेट को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसकी वेट चेंज हो रही है। तो आप इस नंबर्स के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं, स्क्रीन नंबर्स के थ्रू, या आप खुद यहाँ से जो जर्नली भी मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर द जर्नल थिंग यू विल गेट द लेजेंड इज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये जो जेंडर आ रही है मेल और फीमेल लिखी है। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे लेजेंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अभी ये राइट सेंटर पे मौजूद है। मैंने कहा मुझे राइट साइड पे नहीं चाहिए, आई नीड इट ऑन द बॉटम साइड। तो अब आप देखें जैसे मैंने इसको बॉटम साइड पे मूव किया तो ये यहाँ के, मैंने कहा नहीं बॉटम लेफ्ट पे अच्छा नहीं लग रहा, आई नीड इट ऑन द बॉटम सेंटर। तो हियर आई पुट इट ऑन द बॉटम सेंटर। एक और चीज मैंने कही कि मुझे इसके टाइटल ऑन रखना है या नहीं रखना, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी। अगर मुझे टाइटल इसका ऑफ करना है तो देखिए जैसे ही मैं ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ से इसके लेजेंड्स के टाइटल ऑफ हो जा रहे हैं। या अगर लेजेंड्स के टाइटल शो करने भी हैं तो किस नेम से करने हैं, क्या मैं इसको जेंडर ही रखूं या इसको मैं टाइटल। तो जो भी टाइटल मैंने मैनेज करना है वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए, मतलब फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए। तो वी कैन सिलेक्ट अ फॉन्ट साइज। अब जैसे मैंने कैम्ब्रिया सेलेक्ट किया था, आप देखिए जेंडर कैम्ब्रिया पे चेंज हो गया। सो दैट इज द जेंडर पार्ट। द थर्ड वन विल बी द डाटा कलर, जिसके ऊपर हमारी बात हुई थी। तो मैंने ये कहा कि मुझको दो तरह के फीचर्स दिए गए थे। मुझसे कहा गया था कि यार इसको रेड कलर और रेड के साथ इसको रेड विद ब्लैक। सो कुछ इस तरह का व्यू आना चाहिए। सो दैट इज नाउ आई कंट्रोल इट फ्रॉम द डाटा कलर्स लेबल। द फोर्थ वन इज अ डाटा लेबल। अब ये जो डाटा लेबल्स मुझे शो हो रहे लाइक 23 काउंट और 4.09, सो आई हैव ऑप्शन हेयर कि या तो मैं ऑल डिटेल लेबल्स ऑन कर दूं। तो अगर आप देखें मैंने ऑल डिटेल्स लेबल्स काउंट किया तो क्या चीजें दिखा रहा है मुझको। ये मुझे डायमेंशन भी दिखा रहा है, ये मुझे मेजर भी दिखा रहा है, और ये मुझको उनके डिफरेंस परसेंटेज भी दिखा रहा है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैं यहाँ लेबल स्टाइल से किस चीज को देखना चाह रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ कैटेगरी कर दूंगा तो ये ओनली कैटेगरी दिखा रहा है। अगर मैं सिर्फ वैल्यू कर दूँ तो जस्ट उसके काउंट वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ टोटल कर दूँ तो परसेंट डिफरेंस दिखा रहा है मुझको। फिर मैं इनके कॉम्बिनेशन बेसिस के ऊपर भी देख सकता हूँ, और इन द एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं और वैल्यूज देख लूँ। अब डिजाइनिंग पर्पस के ऊपर दो चीज आ गई। अगर आप देखें तो बिला वजह में मैंने यहाँ पे इसकी कैटेगरी भी इनके साथ ऑन की हुई है। अगर उसी कैटेगरी को मैं यहाँ लेजेंड्स पे दिखा रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता। या तो मैं लेजेंड्स ऑफ करूँ, मैं लेजेंड्स ऑफ करूँ तो दैट सीम्स फाइन कि मैं कैटेगरी को जो है डाउनलोड चार्ट के ऊपर दिखा दूँ। लेकिन अगर मैंने लेजेंड्स ऑन किए हुए तो दैट इज नॉट सीम फाइन कि मैं एक ही इन्फॉर्मेशन को दो बार एक चार्ट के ऊपर दिखाऊं। सो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं और डाटा लेवल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लेजेंड्स ऑन किए हुए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है डाटा की जो वैल्यू है और कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज उसको ऑन रख। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं शेप्स। इनर रेडियस इसका कितना होना चाहिए। तो अगर मैं चाहूँ तो अपने डोनट के साइज को यहाँ शेप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एज आई डिमांडेड कि यार मुझे सेंटर में नंबर चाहिए टोटल, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा इसका रेडियस कम कर दूंगा ना ऐसी कंडीशन में। लेट्स कम टू द टाइटल। मैंने आपसे कहा था टाइटल मुझको डिमांडेड ये है, आई नीड डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर। और मुझसे ये कहा गया था कि इस टाइटल की जो हेडिंग होनी चाहिए, टाइटल का कलर जो होना चाहिए वो वाइट में होना चाहिए। तो मैंने फॉन्ट कलर को वाइट कर दिया। लेकिन मुझसे कहा था उसका बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए दैट शुड बी द ब्लैक। और टाइटल जो होना चाहिए सेंटर पोजीशन में होना चाहिए, उसका साइज थोड़ा इंक्रीजेबल होना चाहिए, और उसकी जो फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए दैट शुड बी द टाइम्स न्यू रोमन। तो मैंने इसको कर दिया टाइम्स न्यू। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। क्या इसके बैकग्राउंड्स को हमने ऑन करना है। अगर करना है तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऑन करके रख देता हूँ तो यहाँ से इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी। बट वो मोस्टली हम सिंपल डिजाइन डैशबोर्ड जो बनाते हैं दैट हैव अ बैकग्राउंड कलर ऑन द वाइट बॉर्डर। अभी मैं अगर देखूँ तो मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो इसके आपको कोई बॉर्डर्स नहीं दिख रहे। डू आई नीड अ बॉर्डर ऑन दैम। तो ये बॉर्डर जो था वो आपको इसलिए था कि अगर मैं बॉर्डर्स को ऑन कर दूं, अब आप नेक्स्ट देखिएगा इम्पैक्ट।
अब जब मैंने इसका बॉर्डर ऑन कर दिया तो देखना आप इसको बॉर्डर लाइन आपको ये नजर आ रही है. सो ये इट्स ऑल विल बी द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बॉर्डर्स की नीड है या नहीं है. और फिर उसके बाद आती है टूल टिप. टूल टिप आपको क्या चाहिए? टूल टिप आपके पास ऑटो ऑटो लेवल पे टूल टिप आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रही होती है जो उसके अंदर जो है लेबल्स मौजूद होते हैं. बट यू कैन ऑल्सो डिजाइन अ कस्टम टूल टिप ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड. कि आप रिपोर्ट पेजेस को कॉल करा सकते हैं और वो रिपोर्ट पेजेस के ऊपर जो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं. सो दैट विल बी द सम ऑफ द एडवांस पार्ट. और जब हम किस तरह से कस्टम टूल टिप्स वगैरह को देख रहे होते हैं दैट विल बिकम अ एडवांस थिंग्स. सो अभी हम लोग डिजाइनिंग पे कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे थे. सो अगर मैं देखूँ तो पहला चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. लेकिन इसके साथ मुझको एक रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक डिमांड ये भी थी मेरे पास कि मुझे इसके सेंटर में टोटल ऑफ द एम्प्लॉयज दिखाने थे. सो टू गेट द टोटल टू शो द टोटल ऑफ द एम्प्लॉयज हमारे पास अभी तक जो है पावर बीआई में ये वाला फीचर नहीं है कि मैं यहाँ पे जो है सेंटर में टोटल को लेके आ सकूँ. तो वी आर गोइंग टू यूज अ ट्रिक टू गेट दिस हियर. व्हाट ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज? मैंने एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडीज का ही काउंट दिखाना है ना. और अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो आई हैव अ विजुअलाइजेशन दैट इज कॉल्ड अ कार्ड. मैंने इस कार्ड को लिया. अब आप देख रहे हैं कि 563 का टोटल काउंट जो मुझको चाहिए था ये कार्ड मेरे पास बन के आ गया. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इस कार्ड को ले जाऊंगा और यहाँ प्रॉपरली सेंटर में फिट कर दूंगा. लेकिन यहाँ ये जो नीचे इसकी एम्प्लॉय आईडी नजर आ रही है आई नीड टू रिमूव दिस. तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है कैटेगरी लेबल के नाम से. मैं इस कैटेगरी लेबल को ऑफ कर दूंगा. जैसे ही मैंने इस कैटेगरी लेबल को ऑफ किया तो आप देखें उसका लेबल नेम जो है गायब हो गया. अब इस 563 का ये जो मेरा नंबर है ये प्रॉपर वे में रेडी हो गया. अब इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से डिजाइन करना है कि ये इस डोनट के अंदर प्रॉपरली आ जाए. So that is how I put a total count of the employees in the center of the donut. अब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इसके फॉर्मेट पेन में जाके और जो थोड़ा सा इसका अगर मैं डाटा लेबल के साइज को कम कर दूं बिसाइड्स 45 की जगह मैं इसको कर दूं 40. ठीक है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से. सो दैट इज द फर्स्ट व्यू. अच्छा अभी यहाँ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि मेरा पेज व्यू जो है काफी कम है. मुझे इस पेज व्यू को इंक्रीज करना है. तो हाउ कैन आई इंक्रीज दिस पेज व्यू? मैं यहाँ व्यू ऑप्शन में जाऊंगा और व्यू ऑप्शन में आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है पेज व्यू. तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है फिट टू पेज फिट टू विड्थ. तो मैं इसकी विड्थ को फिट कर लूंगा लेकिन मैं इसकी हाइट जो है यहाँ अगर आप इसकी विड्थ देखें तो विड्थ तो बिल्कुल सही है फिट टू स्क्रीन है लेकिन इसकी हाइट बहुत कम थी. सो टू गेट इंक्रीज ऑफ हिज हाइट व्हाट आई नीड टू डू इज मैं यहाँ से आऊंगा और यहाँ मेरे पास अभी आप देखें फ्रॉम वेयर आई गेट दिस ऑप्शन. अभी मैंने कोई ग्राफ सेलेक्ट नहीं किया. अगर मैं कोई ग्राफ सेलेक्ट कर लूँ तो उस ग्राफ के फिल्टर ऑप्शन ऑन हो जाएंगे. और अगर मैं कोई भी चीज सेलेक्ट ना करूं तो उस वक्त में क्या होगा उस पेज के उस डैशबोर्ड के फिल्टर ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे. तो अभी देखिए मैंने कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं की तो मेरे पास डैशबोर्ड फिल्टर ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं. अब यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है पेज साइज का. मैं पेज साइज पे आके इसके कस्टम साइज पे जाऊंगा और हाइट को अपनी नीड के मुताबिक एक्सटेंड कर लूंगा. अब इसकी मैंने हाइट को इंक्रीज कर लिया है लाइक 1000 या लाइक जितने भी पिक्सल्स पे. तो मैं इसको कर लेता हूँ लाइक 900 पिक्सल्स. ठीक है. सो यप इट विल मेक सम सेंस नाउ. Okay, so our first graph is ready. Let's move to the second graph. What the second graph is saying is we need a head count by the group on the bar chart basis. तो head counts by a group. तो यहाँ पे मेरे पास अब दो रिक्वायरमेंट्स है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ग्रुप वाइज जो है मैंने हेड काउंट्स करना है. तो मैं क्या करूँगा ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा. ये मेरे पास ग्रुप्स आ गए. अब इनके अगेंस्ट जो है लेकिन मुझसे कहा गया कि बार चार्ट फॉर्मेट में बनाना है. तो मैं क्या करूँगा विजुअलाइजेशन से अब आप देखें तो यहाँ मेरे पास सारी विजुअलाइजेशंस मौजूद हैं. ठीक है. मैं इन विजुअलाइजेशंस के साथ जो है यहाँ से कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा. लेकिन इसके अगेंस्ट में मुझे कोई ना कोई जो है काउंट चाहिए. तो उस काउंट को ले जाने के लिए मैं वैल्यूज़ में एम्प्लॉय आईडी को लूँगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा. सो अब आप देखें तो ये मेरे पास बार चार्ट बन के आ चुका है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है.
इस चार्ट को भी जल्दी से हम लोग जो है एक काम करते हैं कि वो कर लेते हैं, फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेते हैं, फॉर्मेट किस तरह से करना है, क्या होना है। तो इसकी जो हेडिंग होगी मेरे पास वो एम्प्लॉयज बाय ग्रुप हो जाएगा, सेम उसी तरह का फॉर्मेट यूज होगा। ये हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो है लेबल्स ऑन कर देंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। तो लेट्स गो टू द फिल्टर पेन ऑफ दिस चार्ट। तो यहाँ अगर मैं आऊँ तो यहाँ मेरे पास सबसे मेन चीज़ है डाटा लेबल्स, आप देख रहे हैं जो कि ऑफ हुए हुए हैं। जैसे डाटा लेबल को ऑन करूंगा तो ये डाटा लेबल्स जो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। डाटा लेबल को थोड़ा और खूबसूरत से डिजाइन कर लेते हैं। सो यहाँ ये मेरे पास डिस्प्ले यूनिट्स पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास नंबर्स काम है तो मैं इसका ऑटो पे ही रखूंगा। ये ओरिएंटेशन ऑफ नंबर पूछ रहे हैं, क्या मैं इसको वर्टिकली दिखाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं एज कम्पेयर टू वर्टिकल। पोजीशन क्या होनी चाहिए जो नंबर शो हो रहे हैं, क्या इनसाइड एंड पे दिखने चाहिए या आउटसाइड एंड पे दिखने चाहिए, या इनसाइड सेंटर में दिखने चाहिए, या इनसाइड बेस पे दिखने चाहिए। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आउटसाइड एंड्स के ऊपर जो है नंबर्स को शो कर रहे होते हैं। टेक्स्ट साइज उन नंबर्स का क्या होना चाहिए, क्या ज़्यादा होने चाहिए या नॉर्मली कम होना चाहिए, तो हम लोग इसको 9 पे ज़्यादातर रखते हैं, क्योंकि वो एक व्यू बेटर देता है, ज़्यादा बड़े नंबर्स ना हो। ठीक है जी। अब यहाँ एक बड़ा मजे की चीज ये है कि इसका शो बैकग्राउंड इस लाइक इसके बैकग्राउंड पे जो कलर है उसको शो करना है या नहीं करना। तो यहाँ देखें तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने जो तकरीबन 90% तक की सिलेक्ट की हुई थी, इसीलिए वो ब्लैक कलर आपको ग्रे में शो हो रहा था। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लोग ज़्यादातर कुछ ये भी करते हैं कि वो टोटल ब्लैक पे ले जाते हैं उसको, और उसके जो पोजिशन की कलर होता है उसको जो है यूं करके वाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग भी व्यूज डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम ये भी करके देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डाटा लेबल्स के साथ डाटा कलर्स के ऊपर। द प्रॉब्लम विद दिस सिचुएशन इज दैट कि मैं अभी अगर मैं देखो शो ऑल करूं तो मेरे पास सारे ग्रुप्स खुल के आ जाए, एंड इट विल बी द बैड प्रैक्टिस कि मैं लाइन बाय लाइन जाके और सबके कलर्स को डिसाइड करूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कलर रेंज दे दूंगा। व्हाट कलर रेंज विल डिसाइड, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो तो अब मेरे पास एक कलर रेंज का जो है कॉलम खुल गया है, और यहाँ कलर रेंज के अंदर जब मैं रेंजेस बता सकता हूँ, तो मुझे कंपनी थीम मेरी जो पता थी वो मुझे पता थी रेड के ऊपर थी। तो मैं इसकी जो लोएस्ट वैल्यू को कहूँगा कि डार्केस्ट रेड हो जाए, और इसकी सॉरी मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू को कहूँगा जो लाइटेस्ट रेड हो जाए, और हाईएस्ट वैल्यू को कहूँगा जो कि डार्केस्ट रेड हो जाए, और मैं इसको कर दूंगा ओके। सो अब आप देखें तो अभी प्रॉपर बेसिस के ऊपर जो है मेरे पास जो है बन के आ गया लेजेंड्स। ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, काउंट ऑफ ग्रुप 1 2 33, मुझे लेजेंड्स अच्छे नहीं लग रहे, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। सो अब मेरे पास अब मुझे एक और प्रॉब्लम जो हो रही है, वो ये जो एक्सेस के ऊपर ग्रुप एंड एम्प्लॉय आईडी लिखना चाह रहा आ रहा है ना, मैं इसको ऑफ करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सेस, अगर मैं इसको यहाँ से कंप्लीट ऑफ कर दूंगा तो मैं एक्स एक्सेस से उसके नेम्स को जो मिस कर दूंगा। सो मैं एक्स एक्सेस के पेन में गया और यहाँ से जाके मैं इसके टाइटल को जस्ट ऑफ कर दूंगा। द सेम आई विल फॉलो इन वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस पे गया और इसके टाइटल को जाके ऑफ कर दूंगा। ठीक है। अब डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में एक प्रॉब्लम और ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो वाई एक्सेस में 0 50 100 की वैल्यूज आ रही हैं। आई डोंट नीड दीज वैल्यू, बिकॉज मैंने हर बार पे उसके नंबर शो किए हुए। जब मैंने ये सब किए हुए तो मुझे एक्सेस वैल्यूज की नीड ही नहीं है। सो आई नीड टू ऑफ दैट एक्सेस। तो मैं क्या करूँगा, इस वाई एक्सेस को कम्प्लीटली ऑफ कर दूंगा। द ओनली थिंग दैट आई सी इज रिमेनिंग इज द टाइटल ऑफ दिस चार्ट। सो द टाइटल विल बी द So the title will be the employee counts by, ठीक है ठीक है। सेम फॉर्मेट हम इसका भी ही डिजाइन करेंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, और इसका जो है फॉन्ट कलर जो है वाइट कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक कर देंगे, इसके साइज को हम लोग कर देंगे इंक्रीज अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस चार्ट, ताकि दोनों प्रॉपर फॉर्मेट्स के अंदर नजर आए। सो अब आप अगर देखें तो एक प्रॉपर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ की रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूं और स्क्रीन में हम लोग फिर ज़्यादा प्रॉपर्ली देख सकें कि अब तक हम क्या कर चुके हैं। अब तक हम ये दो चीज़ों को डिज़ाइन कर चुके हैं। द थर्ड वन इज़ अ मंथली हेड काउंट। मंथली हेड काउंट हमने डिज़ाइन करना है कि कितने लोग किस मंथ के ऊपर जो मेरे पास अपॉइंट हुए हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। अच्छा, अब मेरे पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट विल बी, अब मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा,
ठीक है, व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे पास एक ऑप्शन और होता है, मैं कंट्रोल सी प्रेस करूं और कंट्रोल वी प्रेस करूं, तो मेरे पास इसी ग्राफ की जो है ना एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, द सेम एज द विंडोज का जो नेचर होता है। अब इस ग्राफ में दिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि अमेंडमेंट्स कैसे करनी होती है। सो अब मेरे पास नीड ये है कि मुझे मंथली हेड काउंट्स के ऊपर जाना है, तो उसके लिए मुझको कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी। द फर्स्ट थिंग विल बी द एम्प्लॉयज अपॉइंटमेंट डेट या अपॉइंटमेंट मंथ, ठीक है, और द सेकंड थिंग विल बी द एम्प्लॉय काउंट के उस मंथ के अंदर जो कितने काउंट्स आए हैं। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ से ग्रुप को हटा के, क्योंकि मुझको ये चीज पता है कि मुझको अपॉइंटमेंट्स के ऊपर काम करना है, तो मैं अपॉइंटमेंट डेट को लेके आ जाऊंगा एक्सेस के ऊपर। ठीक है, और इसी के साथ मुझको वैल्यूज जो पता है वो एम्प्लॉय आईडी के काउंट ही है, तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को नहीं छेड़ रहा कभी। लेकिन जो ग्राफ डिमांड थी वो मुझसे मेरे साथ जो लाइन चार्ट की थी, तो मैं यहाँ विजुअल में आऊंगा और लाइन चार्ट सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने देखा लाइन चार्ट सेलेक्ट किया तो इसने लाइन चार्ट मुझे प्रिपेयर करके दे दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नीड नहीं दिया। यहाँ पे इसने जो अपॉइंटमेंट डेट ली है ना वो कंप्लीटली डेट ली है, मुझे इसको डेट में नहीं चाहिए। तो आपने एक चीज देखी होगी, मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, जिसके अंदर हमने इनको जो है डेट्स या मंथ की बेसिस के अंदर जो कन्वर्ट किया हुआ था मंथ नंबर और मंथ नेम की बेसिस पे। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूंगा, यहाँ से मंथ नेम को उठाऊंगा और एक्सेस पे लेके आ जाऊंगा। सो अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास मंथ वाइज एम्प्लॉय काउंट जो है जनरेट हो गए हैं, किस किस एम्प्लॉय ने मुझको कब कब ज्वाइन किया। लेकिन ये मुझे थोड़ी सी डिजाइनिंग प्रॉब्लम लग रही है। डिजाइनिंग प्रॉब्लम इन अ सेंस इज दैट आई जस्ट वांट अ लाइन, मुझे ये बटन ही चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए, और इसका टाइटल को भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो इसके टाइटल को जल्दी से आके चेंज कर लेते हैं। ओके, अब प्लॉट एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। प्लॉट एरिया से पहले हम लोग शेप्स के ऊपर ये बात कर लेते हैं। तो ये जो अगर आप सर्कल्स सर्कल्स देख रहे हैं तो ये सर्कल्स के शेप्स ये कहलाते हैं। इन शेप्स को हम लोग यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। शेप्स आपके पास जो है काइंड ऑफ जो राउंडिंग फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अंदर ये हो सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये मार्कर्स सारे हैं, ये मार्कर शेप्स आपके पास ये ट्राइंगल फॉर्मेट्स के अंदर भी हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप जैसे ऐसे चाहें तो उनको रख सकते हैं। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझको जो है इसके लेबल्स यहाँ पे, अच्छा पहले हम लोग एक चीज ये देख लें कि हमारी इसके अंदर इन्होंने अच्छा इन्होंने, अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम इनको फॉलो कर लें तो इन्होंने यहाँ पे ये जो आपके पॉइंट्स है, पॉइंट्स भी दिए हुए और पॉइंट्स पे वैल्यूज भी दी हुई है, तो वी नीड टू कीप दैम अलाइव देयर। सो यहाँ अगर ये कंडीशन दिखी है तो हमारे पास भी ये, लेकिन द थिंग इज दैट कि इसकी जो लाइन का ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस लाइन के ब्लू कलर को लेके चला जाऊंगा रेड कलर पे। सो दैट मेक्स सम सेंस नाउ। और ये जो लाइक इसकी वैल्यूज के कलर्स आ रहे हैं, इनको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इनका बैकग्राउंड अभी जो ब्लैक हुआ हुआ है इसको व्हाइट के ऊपर, ये ग्रेश के ऊपर लेके आ जाते हैं, इसका बैकग्राउंड हम खत्म ही कर देते हैं। सो just data label, so data label is here। डाटा लेबल्स के अंदर लेबल के कलर को मैं ले आता हूँ ब्लैक पे, और इसके मैं बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, सो अब ये थोड़े प्रॉपर वे के अंदर मुझे ग्राफ नजर आ रहा है। सो लेट्स चेक अवर इमेज हैव हेड काउंट बाय फंक्शन। अच्छा अगर मैं अभी देखूं तो द गुड थिंग इज दैट कि मेरा पूरा का पूरा ग्राफ जो है इंटरेक्टिव है। अगर मुझे स्टडी आउट करना है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि ये 23 जेंडर्स ऑफ फीमेल्स जो है मेरी किस किस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और इनकी ज्वाइनिंग्स कब कब है, तो आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस जेंडर 23 और आप देखेंगे पूरा डैशबोर्ड जो है फिल्टर आउट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अब आप देखें तो मुझको साफ पता लग रहा है नीचे कि 23 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से कंपनी में, तो डिपार्टमेंट नंबर 7 के अंदर 5 है, 8 के अंदर 5 है, पार्ट टाइमर मेरे पास एक है, और इसे 10 के अंदर 10 है, सॉरी 4 है, 7 ग्रुप 9 के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे पास नंबर ऑफ फीमेल्स मौजूद है, और बाकी कुछ ग्रुप्स के अंदर तो है ही नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा फीमेल्स जो हायर की हैं वो फरवरी, जून और अक्टूबर के मंथ के अंदर मैंने अपनी फीमेल्स हायर की हैं सबसे ज़्यादा, एंड मेरे पास टोटल काउंट ऑफ फीमेल्स जो है वो जो है 23 है। Let's move to the, oh, my screen is paused and nobody is saying that.
ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विल बी द, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, द सेम स्ट्रेटेजी वी विल यूज। हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ का जो है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, इसी ग्राफ की मैंने एक कॉपी क्रिएट की, और मेरे पास जो लास्ट केपीआई थी दैट विल बी द हेड काउंट्स बाय फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे हेड काउंट बाय फंक्शन लेने थे, लेकिन वो हेड काउंट बाय फंक्शन जो थे अभी तो मैंने ये वर्टिकल बार चार्ट बनाए थे, नाउ दे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बस स्टैक बार चार्ट मौजूद है, बट ये अभी वर्टिकली भी है और ये मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टली भी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेसिस पे क्लस्टर बार चार्ट ले लेता हूँ। और लेकिन अब मेरे पास जो नीड है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ वापस आऊँ तो मुझसे कहा गया बाय फंक्शन चाहिए, तो मैं मंथ को हटा दूंगा और मंथ की जगह मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से फंक्शन। तो फंक्शन को मैंने ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया। अब अगर मैं देखूँ तो बाय फंक्शंस मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई है कि एम्प्लॉय काउंट्स कितने थे और क्या थे। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग पे काम कर लूँ, यानी कि जस्ट नीड लाइक दिस। ठीक है, ये होगा। अब मैंने इनको प्रॉपर वेज के अंदर जो मैं लेके आ गया हूँ, व्हाट विल द बेनिफिट ऑफ दिस, मैं क्या करूँगा, सबके आगे जब बॉर्डर्स ऑन कर दूँ ना तो मुझे एक अच्छा इम्पैक्ट नजर आएगा। अच्छा, मैं इनको मल्टी सेलेक्ट करके भी काम कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ आऊँ उनके फिल्टर के अंदर, तो जो मेरे पास, आई थिंक ये ऑप्शन नहीं, इन्होंने बंद कर दिया। तो मैं अब यहाँ हूँ तो बॉर्डर्स मैंने ऑन कर दिए। अगर आप देखें तो बॉर्डर से मुझको फायदा क्या होगा। सो ये मेरे पास एक प्रॉपर बॉर्डर के अंदर अलाइन फॉर्म में, एक मिनट, अलाइन फॉर्म के अंदर ये चारों ग्राफ्स या मेरे पास ये केपीआईज आ चुकी है, लेकिन ये बॉर्डर जो है मुझको बहुत डार्क लग रहे हैं। मैं इंस्टेड ऑफ ब्लैक, अब मैं इस बॉर्डर का थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव पे जाता हूँ। और ये बॉर्डर ना मुझको राउंड में अच्छे भी नहीं लग रहे, वो मतलब लाइक स्क्वायर में अच्छे भी नहीं लग रहे। मैं इनको राउंडिंग फॉर्म के अंदर ले आता हूँ, इनको मैं ग्रेश कर देता हूँ। तो अब आप इम्पैक्ट देखिएगा, अब आप देख रहे हैं ये राउंडेड फॉर्म के अंदर आ गया प्रॉपर। इनको मैंने ग्रेश कर दिया, इसको मैं ले गया राउंडेड फॉर्म के अंदर। द सेम विल गो फॉर दिस, इसको मैंने ग्रेश कर दिया, इसको मैंने कर दिया राउंडेड फॉर्म के अंदर, ग्रेश कर दिया, और इसको मैंने कर दिया राउंडेड फॉर्म के अंदर। अब आप देखें तो राउंडनेस से थोड़ा सा इनका लुक अच्छा आ गया, और जो हमने ब्लैक बॉर्डर को हटाया तो उसकी वजह से ऐसा इतना नहीं लग रहा कि यार इसके ऊपर कोई चीज इम्पैक्ट हुई हुई है। ये सारी तो हमारे पास अभी तक मेन केपीआईज थी, यानी केपीआईज जो अगर आप देखें तो इंटरेक्टिव फॉर्म में, कि मैं किसी भी एरिया में क्लिक करूं तो मेरा पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है इजीली मूव कर रहा है ऑन दैट वैल्यू, और उसके ऊपर मुझे पर्टिकुलर insights प्रोवाइड कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी नीड टू इंक्लूड मोर। मुझे यहाँ पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू माय डिजाइन देखूँ, जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझको अभी यहाँ टॉप पे जिसका लोगो चाहिए, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी चाहिए। तो मैं इन फिल्टर्स और इन लोगोस को जो है इंक्लूड कराना शुरू करता हूँ और देखते हैं इंक्लूड कैसे होंगे इनके इंक्लूजन। सो लेट्स कम टू द डेस्कटॉप। अब मुझको यहाँ पे क्योंकि इमेज इंक्लूड करानी है, तो इमेज इंक्लूड कराने के लिए अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। मैं यहाँ इंसर्ट के अंदर आऊँगा टॉप से, और आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे इमेज का। मैं जैसे ही इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि जहां से मैं अपने कंप्यूटर से इमेज को लोड कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहली इमेज लोड करूंगा विच इज ऑफ पीपल वाली, तो ये इसकी इमेज को लेके आ जाएगा। इस इमेज को मैंने डिजाइन करके,
इस तरह से लगा दिया. द सेकेंड वन विल बी, अब जैसे बड़े मजे का सिनेरियो ये आ गया कि यहाँ पे मुझको इमेज के साइज से प्रॉब्लम हो रही है कि यार एक चीज बड़ी हो जा रही है, एक चीज छोटी हो जा रही है. व्हाट आई डू इज, मैंने इमेज को क्लिक किया, जर्नल पे आया, और जर्नल पे आके मैंने इसकी विड्थ देखी 74 एंड हाइट इज 116. मैं यहाँ इस इमेज पे गया, विड्थ इज 74, इसकी भी मैंने सेम कर दी एंड हाइट इज 116. अब ये देखिए ऑटोमेटिकली इसी के शेप पे ये आ जाएगी इमेज. 74, height is 116, width is 74, height is 116. ये दोनों तो मैंने सेम कर दी. मे बी इनकी इमेज प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनके अगर आप बॉक्सेस साइज देखें तो ये दोनों तो सेम हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल. अब ये इनकी इमेज प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक अलग बात है, तो फिर ये मुझको मैनुअली हैंडल करनी पड़ेगी. चलो जी, ये हो गई तकलीफ. इसको जो है अकॉर्डिंग टू डिजाइन सेट कर लेते हैं. ठीक है, शेप ले आते हैं. सो here is the delete button. इसका फिल को ऑफ कर देते हैं और इसके आउटलाइन को हम लोग कर देते हैं ग्रे. ठीक है, आउटलाइन के वेट को बढ़ा के 2 कर देते हैं. इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसके फ्रंट पे आ रही है तो इसको मैं सेंड बैकवर्ड पे भेज दे रहा हूँ. सो ये जो लाइन है वो अब इनके पीछे चली गई है इन इमेजेस की ना. अब इसके बीच में मुझे डैशबोर्ड टाइटल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का. मैंने जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसको मैं नाम दे दूंगा HR डैश. इस HR डैशबोर्ड का थोड़ा सा सेट कर लूँ, इसकी हेडिंग को मैं दे दिया 10 सेंटर में. थोड़ा सा मैंने साइज इंक्रीज कर दिया. Now that how somehow that seems fine. So अब let's talk about the filter things. तो filters हमें यहाँ पे लगाने हैं. The first filter will be the required filter will be the gender. Gender based हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो gender के filter को मैंने gender को यहाँ पे drag and drop किया. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है. ये आप देख रहे हैं स्लाइसर, दैट स्लाइसर इज कॉल्ड अ फिल्टर. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास आप देख रहे हैं कि चेक बॉक्स बन के आ चुके हैं. अब मैं जैसे यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा तो पूरा डैशबोर्ड मेल पे मूव हो जा रहा है, जैसे मैं फीमेल को क्लिक करूंगा तो ये फीमेल पे मूव हो जा रहा है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इस फिल्टर को जो है लाइक चेक बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर रखूं, या मैं इसको किसी ड्रॉप डाउन, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ड्रॉप डाउन पे, तो ये ड्रॉप डाउन पे भी इस तरह से आ सकता है.
सो अब आप देख रहे हैं यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन जैसे ही कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट करना चाहूँ तो मेल सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मोस्टली इट्स ऑल डिपेंड्स अवर कॉल कि हम डिजाइनिंग परस्पेक्टिव में किन चीज़ों को देख रहे होते हैं। क्या मैं लिस्ट फॉर्मेट के ऊपर इस तरह से चेक बॉक्सेस रखूँ, या मैं इसके ऊपर जाके जो चेंजेस कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके भी थोड़े से हम लोग कंडीशंस को देख लेते हैं। एक और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन इज वर्टिकल। मैं अगर इसके ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल में चेंज कर लूँ तो इस तरह से मेरे पास ये बटन फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, बटन फॉर्मेट के ऊपर जो करके ले गया। द सेम टाइप ऑफ थिंग वी नीड ऑन द टॉप ऑफ आवर डैशबोर्ड। मुझे सेम इसी तरह की जो है हॉरिजॉन्टल जो है मंथ बेसिस के ऊपर लाइक वो चाहिए इसकी फिल्टर कंडीशन चाहिए। तो व्हाट आई डू इज कि मैं इसको सबसे पहले नीचे ले जाऊं और मैं स्पेसिंग थोड़ी सी क्रिएट कर लूं ताकि मैं इसकी ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको जनरेट इसको कॉपी किया पेस्ट किया ताकि मेरे पास सेम फिल्टर आ गया, ताकि मुझे बार बार वर्किंग ना करनी पड़े। तो इंस्टेड ऑफ अब मैं जेंडर लेवल्स के मुकाबले में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे एक और चीज़ चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। तो मैं इस मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और जेंडर को मैं अनड्रॉप कर दूंगा। सो अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये मंथ लेवल्स के ऊपर जो सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, या मैं इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी, मैं मंथ चाहूँ या मैं इसको चाहूँ तो मैं किसी फंक्शन बेसिस के ऊपर यानी कि डिपार्टमेंट नेम की बेसिस के ऊपर भी इसको ले जा सकता हूँ। तो मेरे पास जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद होंगे उनके नेम स्टॉप पे आ जाए। मैं किसी डिपार्टमेंट को अगर स्टडी करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास कस्टमर सर्विस, तो मैं जैसी कस्टमर सर्विस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से टॉप पे मेरे पास पूरा डैशबोर्ड कस्टमर सर्विस के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, इसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी फॉर्मेटिंग क्या है। सो जो कलर है वो मुझे कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं कलर थोड़ा सा अगर इसका चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ। क्या ये सिंगल सेलेक्ट ऑप्शन ही रहेगा? अच्छा, एक मजे की चीज़ यहाँ पे एक फीचर ये काफ़ी अच्छा है, सिंगल सेलेक्ट ऑप्शन जो है ये इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके मल्टी सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि मैं दो डिपार्टमेंट्स को एक साथ स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी मेरे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप देखें अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर और कस्टमर सर्विस और कमर्शियल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो ये मैं तीन डिपार्टमेंट्स को कंबाइनली स्टडी कर रहा हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ये ऑप्शन दूँ कि भाई सिर्फ एट अ टाइम एक डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी, अगर मैं सिंगल सेलेक्ट चाह रहा हूँ तो मैं ऑन कर दूँ यहाँ से, अगर मैं मल्टी सेलेक्ट चाह रहा हूँ तो उसको ऑन कर दूँ। और ये मुझे यहाँ पे एक और ऑप्शन देगा, सेलेक्ट ऑल की भी आप फीचर ऑन कर सकते हैं कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ देखना चाहूँ। स्लाइसर हेडर के बारे में मुझसे पूछ रहा है, मुझे स्लाइसर हेडर देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइटल की, तो मैं स्लाइसर हेडर को रिमूव कर दूंगा। तो आप देखिए स्लाइसर हेडर यहाँ से रिमूव हो गया। आइटम्स की बात पूछ रहा है, आइटम्स का फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आइटम्स का फॉन्ट कलर है वो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, विच इज़ अ वाइट हेयर नाउ। अगर आप देखें तो इसको मैं ब्लैक पे वाइट पे किसी भी तरह की चीज़ पे ले आ सकता हूँ। उनका बैकग्राउंड कलर क्या होने चाहिए, सारी वो चीज़ें आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन के बाद उनके बैकग्राउंड कलर्स क्या होने चाहिए, टाइटल उनके ऊपर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर्स क्या होने चाहिए, सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक तरह से मैं इस वैल्यू के ऊपर या इस लेबल के अंदर कर सकता हूँ। अब आप यहाँ देखें तो ये मुझे आगे जाने के भी ऑप्शन दे रहे हैं। इट्स मीन्स कि इट वांट से इट कि यार और भी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और भी मौजूद है, तो यहाँ से मेरे पास ये मूवमेंट बैनर बन चुका है। अच्छा जी, द सेकेंड फिल्टर दैट आई नीड टू पुट हेयर विल बी ग्रुप। तो मैं क्या करूंगा, टू गेट द ग्रुप मैं जस्ट ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैम इनटू द लाइक अ चेक बॉक्स, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कन्वर्ट करूंगा स्लाइसर में। और ये चेक बॉक्स में इस तरह अच्छा नहीं लग रहा मुझको ना, मैं इसको ले जाऊंगा ड्रॉप डाउन लेवल के ऊपर। अब ये ड्रॉप डाउन लेवल के ऊपर मेरे पास आ गया एज अ सेकंड फिल्टर नेम्ड एज ग्रुप। सो फर्स्ट वन की हम जाके थोड़ी हेडिंग पे काम कर लेते हैं। मुझे टाइटल इसका जो लग रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा। इट सीम्स फाइन। द सेम विल गो फॉर द ग्रुप लेवल, इसके ग्रुप के भी थोड़े से टाइटल पे काम कर लेते हैं।
और इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रो। ठीक है, ये दो चीजें मेरे पास हो गई प्रॉपर वे में, और स्लाइसर हेडर मैंने इसका ऑफ कर दिया। सो यहाँ मेरे पास अब फिल्टर लेवल के अंदर भी ये चीज़ है, मैं चाहूँ तो फिल्टर लेवल से भी जाके इस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो यप, द नेक्स्ट थिंग विल बी द इज द एम्प्लॉयज कंफर्म्ड और नॉट आउट। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें तो मैं एक बार फिर से शेयर कर लूँ, तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें तो बस हमारे पास एक ये पार्ट आ गया विच इज़ अ कंफर्म एंड नॉट कंफर्म्ड एम्प्लॉय, कि मुझे ये चीज़ पता करनी है कि क्या ये एम्प्लॉय कंफर्म्ड है या ये एम्प्लॉय नॉट कंफर्म्ड है। तो आ जाए इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने सेम जेंडर वाले फिल्टर का कॉपी किया, पेस्ट कर दिया इसको। सो मेरे पास ये आ गया जेंडर फिल्टर, और इसको मुझे चेक करना है कि ये कंफर्म्ड है या नहीं है। तो कंफर्म का मेरे पास फ्लैग मौजूद है, उस कंफर्म के फ्लैग को मैं ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। सो सेम मेरे पास ये कंफर्म के फ्लैग भी यहाँ पे आ गए यस और नो की बेसिस के ऊपर, और फिर इनको जो है मैं मतलब लाइक मैनेज कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो ये मेरे पास चले जाएंगे यस के ऊपर जो कंफर्म्ड एम्प्लॉयज है, और अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास नो के ऊपर मूव कर जाएंगे जो कि अनकंफर्म्ड एम्प्लॉयज है। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग को भी देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास जो है फॉर्मेटिंग से अंदर डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं, आइटम्स आ रहे हैं, आइटम्स के फॉन्ट कलर्स आ रहे हैं, आउटलाइंस की पूछे कि आउटलाइंस इसकी कैसी होनी चाहिए, बॉटम से होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, या ओवरऑल हर तरफ होनी चाहिए पूरे के पूरे फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखें तो सिर्फ फ्रेम के ऊपर ये आउटलाइंस आ जाएंगे। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव के ऊपर जा रहे हैं और डिजाइंस कैसे कर रहे हैं। अब व्हाट इफ आई नीड टू पुट अ लोगो हेयर, मुझे यहाँ पे लाइक एक लोगो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट करें मुझे FTI का लोगो लेके आना है, तो इट्स लाइक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। I just need to go and copy their logo, FTI, और इसको मैं लेके आ गया डेस्कटॉप पे, और इसको मैंने अपने पास से सेव कर लिया। अब मैं इस लोगो को इंक्लूड करा रहा हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। सो इट्स लाइक मेरे पास ये FTI का लोगो आ चुका है। अब अगर आप देखें तो ये स्क्रीन पे मेरे पास FTI का लोगो मौजूद है, आई जस्ट नीड टू इंक्लूड दिस ऑन माय डैशबोर्ड। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ और कैसे इसको जो है मतलब मैं डिजाइन करता हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो एज एन वाटर मार्क जो है सेम लोगो को कॉपी पेस्ट करके एज एन वाटर मार्क जो पूरे डैशबोर्ड पे एज अ ब्लर भी लगा सकता हूँ। कैसे, हर उसके बैक पे, ताकि आपके पास जो है एज अ ब्लरी थिंग या एज अ प्रैक्टिस थिंग आपके पास आ रही हो, लेकिन ये ना हो कि उसकी वजह से आपका डैशबोर्ड प्रॉब्लमेटिक बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग्स पे काम करेंगे, हम इसके डिजाइन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास कहाँ गया, no. इसमें ये ऑप्शन इमेज लेवल पे देता तो है ही, मेंटेन लेयर ऑर्डर। इसको ब्लर करने का ऑप्शन देता था मुझे जहाँ तक याद है। where is it is, ये टाइटल है, बैकग्राउंड है, लॉकिंग इफेक्ट है, बॉर्डर है, शैडो है, don't need any shadow, it's an action and a visual header। चलिए इसको भी हम कर देते हैं, लेकिन हम इसको लगा देते हैं लाइक FTI। awesome। so
ये रहा मेरे पास। अगर मैं चाहूँ तो इस एचआर डैशबोर्ड के ये टॉप लोगो को हटा के और इसकी जगह जगह मैं ऐड करना चाहूँ आपकी कंपनी का लोगो या लाइक आपकी जो भी प्रैक्टिस थिंग का लोगो, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। Let me design this. अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का लोगो है ये ऑन द मुझे फ्रंट चाहिए, ठीक है। तो द सेम आई एम गोइंग टू डू इस, मैं फॉर्मेट पेन पे जाऊंगा और इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे लेके आ जाऊंगा। होप सो ये लाइन चली जाए, लेकिन ये लाइन इसकी शेप की गई नहीं जबकि मैंने इसको बैक पे भेजा हुआ था। चलिए इसको हम ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं। सो या हमारे पास अब कुछ फाइनल इमेज इस तरह से बन के आई है। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर एडिट कर लेते हैं। सो हमारे पास फाइनल इमेज आफ्टर द डिजाइनिंग एंड क्रिएशन ऑफ थिंग्स और डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं प्रॉपर इमेज जो प्रॉपर डिजाइन के साथ हमारे पास जो बन के आई है वो कुछ इस तरह की आई है। इसको मैं अब इसके अगर मैं पेन्स को ऑफ कर दूं तो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो ऑफ हो रहा है। सो ये हमारे पास जो आज के सेशन में कुछ चीज़ें थी। अच्छा, कुछ छोटी सी चीज़ें और मैं डिस्कस कर दूं कि आपको जो है नीड होती है इन द फ्यूचर, या कभी भी हम जहाँ पे इंसर्ट करने आए थे वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन था बटन्स का भी। तो ये बटन्स क्या होते हैं? ये बटन्स आपके लिए आसानी पैदा करते हैं कि अगर आपको एक डैशबोर्ड से दूसरे डैशबोर्ड पे नेविगेशंस के ऊपर जो है मूव करना होता है, ठीक है। सो वहां पे आपके लिए काफी आसानी हो रही होती है कि लाइक अगर आप एक बटन को इंक्लूड करा लेते हैं, लेट मी इंक्लूड, तो अब ये देखें यहाँ ये मैंने जैसे ही बटन को इंक्लूड कराया तो इसके फॉर्मेट पेन के अंदर अगर मैं आके देखूं तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कुछ चीजें, बटन के टेक्स्ट को ऑन करना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास कुछ चीजें और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि लाइक द मेन थिंग जो इसके अंदर शो करने वाली चीज है ना, दिस विल बी द एक्शन पॉइंट, कि ये एक्शन क्या होगा, वो एक्शन क्या इसने ड्रिल थ्रू कराना है, क्या इसने किसी पेज पे नेविगेट कराना है। अगर कोई दूसरा पेज यहाँ पे डिजाइन होता, फर्ज करें इसको मैं एक पेज ऑन कर लेता हूँ और ये पेज 2 डिजाइन के फॉर्म में आता, तो अगर मुझे इस बटन के थ्रू पेज 2 के ऊपर जो है नेविगेट करना था, तो यहाँ पे अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास नेविगेशन ऑन हो चुकी होगी। ये देखें पेज 2 आ रहा है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये मुझको पेज नंबर 2 के ऊपर लेके जाएगा। जैसे ये देखें मैंने क्लिक किया तो ये मुझे पेज नंबर 2 के ऊपर ले गया। पेज नंबर 2 के ऊपर फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप वहां से जाके जो है इसको वर्क ऑन कर सकते हैं। अगर मैं अब मैं यहाँ से इसके बटन टेक्स्ट के पे भी काम कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट कलर को भी मैनेज कर सकता हूँ। फॉन्ट कलर व्हाट आई नीडेड है इसके ये हो जाए लाइक रेड। अच्छा, मैं चाहूँ तो कोई मोर कलर्स भी ले सकता हूँ यहाँ से। तो मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए रेड, और मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर अलाइंड हो, नहीं सेंटर अलाइंड हो, लेफ्ट अलाइंड हो काफ़ी, और इसका आइकन ऑन हो, ठीक है, और शेप इसका हेल्प हो, ठीक है, और इसको मैं अरेंज कर लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। वेट इसका कुछ ऐसे हो, आउटलाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ आउटलाइन, राउंड एजेस होनी चाहिए इस बटन के, ठीक है। इस बटन को मैंने फिल अप करना है, यस मैंने करना है, फिल करना है विद व्हाट का ऑन होवर ऑन प्रेस ऑन डिसेबल, ऑन होवर पे करना है, विद व्हाट कलर करना है, वो कलर मैं इसका डिसाइड करके बता दूंगा। कलर हो जाएगा इसका लाइक अ ब्लू, ठीक है।
तो जब जब मैं इस पर होवर करूँगा तो देखिए इस तरह से ब्लू हो जाएगा, लेकिन मुझे ब्लू अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस ब्लू की जगह इसको रेड की जगह मैं इसको कर देता हूँ लाइक अ वाइट, ज़्यादा बेटर व्यू देता है। ठीक है, बेस्ट हो गया ये। ओके, सो लेट्स गो टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है तो मैं ब्लैक पे कर देता हूँ। सो ट्रांसपेरेंसी अगर मैं उसकी चाहूँ तो बढ़ा देता हूँ ताकि ब्लैक मुझे और वैसे दिख रहा हो। अच्छा जी, ये बात हो गई। टेक्स्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं। टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा, मैं टेक्स्ट का साइज़ जो थोड़ा बोल्ड करना चाह रहा हूँ। सो मैं इसका एरियल ब्लैक कर देता हूँ। सो यहाँ से मेरे पेज कलर डिज़ाइन हो रहा है। Let's go to the icon side again. Where is icon, icon, icon? I want to see the icon. I am unable to see where is icon. Icon is here. So आइकन पे जो डिजाइन कलर है इसको भी मैं वाइट कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर व्यू आ जाए। सो दैट इज हाउ वी डिजाइन द आवर डैशबोर्ड। और नाउ यहाँ से मैं इसके ऊपर होवर करूंगा और ये फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जा सकता है और चीज़ों को देख सकता है। तो दैट्स हाउ वी डिजाइंड इट। अच्छा, अब इसकी फाइल को सेव करने का पैटर्न क्या होता है? आप यहाँ पे आएंगे और वही सेव एज के पैटर्न पे आपके पास PBIX फाइल के अंदर ये चीज़ सेव होती है। तो मैं इसको नाम देता हूँ FTI webinar और it's like 20, what date today is 23, yeah 23 Jan 2022। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। अनदर ऑप्शन वी हैव इज कि हमारे पास अगर पावर BI की आईडी हो तो हम उस पर जाके यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी आईडी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफिस आईडी रिक्वायर्ड होती है, तो आप उस पर जाके इसको मैंने आईडी वाला डाल दिया, वहाँ पे आप पब्लिश करके एंड देन पावर BI सर्विसेज के थ्रू जो है आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। आई डोंट रिमेम्बर माई पासवर्ड, लेकिन लेट्स चेक इट आउट, शायद मुझे याद हो। The another thing will be, let's check it out, इसका option so हम इस पे पर्सनल अकाउंट के थ्रू नहीं जा सकते। वी नीड अ स्कूल और अ कंपनी अकाउंट टू वर्क अकाउंट। तो इट्स अ सिंपल स्टेप दैट वी नीडेड। सो इट्स अ सिंपल स्टेप दैट वी नीडेड एंड उसके थ्रू जो हम इसको आसानी से जो है फिर कर सकते हैं। लेट्स गो टू माय डैशबोर्ड अगेन और लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। अच्छा, अब इसी डैशबोर्ड को अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं, मेरे पास एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस भी होते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF कर लूँ अगर मैं इसको, तो इसकी एक PDF रिपोर्ट बन जाएगी। और अब आप देखें तो ये प्रॉपरली मेरे पास जो है PDF फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग जिसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएटेड आवर डैशबोर्ड, फर्स्ट डैशबोर्ड विच इज़ HR एनालिटिक बेस्ड डैशबोर्ड, एंड वो किस तरह से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहा है और सारी चीज़ों को हमने डिज़ाइन करके इस चीज़ों को देखा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट? हाउ इज़ इट गोइंग? और चीज़ें समझ में आई? Any questions from anyone? Okay, so no questions. Let's ended it of this session. इसकी रिकॉर्डिंग्स और ये फाइल्स वगैरह सारी इंशाल्लाह आपको जो है मिल जाएंगी। लेट्स प्रैक्टिस इट आउट एंड फिर आप इसके एडवांस वर्जन्स पे मूव कर सकते हैं एंड देन यू विल बिकम द
best of Power BI designer, inshallah. So yep, that's all from my side. No questions from your end. So happy Power BI working, and सीखते रहें और बस जानते रहें. So there are a lot of updates coming from the Power BI and Microsoft sites. So yep, one chat. Engineering point of view. What does it mean by engineering point of view? Can you elaborate this? सर पूछने का मतलब ये था कि हम इसको एज ए मतलब प्लांट में या प्रोडक्शन में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर किया जा सकता है ये Okay. या क्या, Okay. So most of the people are या जस्ट using it. यूज. Exactly. So most of the people are using it on the IoT based purposes. IoT basis के ऊपर काफी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है. तो आप प्लांट्स और प्रोडक्शन में ऑल डिपेंड. लेकिन टू डिजाइन अ डैशबोर्ड सबसे पहले आपने अपनी KPIs डिजाइन करनी होती है. KPIs आर द की पॉइंट इंडिकेटर्स के कौन कौन से आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हैं. सो आई डिड अ वर्क फॉर अ पीएनजी क्या करती थी अपनी डेली प्रोडक्शंस को मॉनिटर करने के लिए. दे यूज पावर एप्स एंड द पावर बीआई डैशबोर्ड्स के उनके पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स आर इन वर्किंग, कौन सी मशीन्स जो डाउन हुई हैं, उनके डाउन टाइम्स क्या थे, अगर वो डाउन टाइम्स उनके कुछ ऐसे थे जो कि पीक प्रोडक्शन आवर्स थे तो उनके लोड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. एवरेजली मेरी कोई एक मशीन 20 घंटे बन रही है तो क्या उसके लोड्स को मैं डिफरेंट मशीनरीज पे मूव कर सकता हूँ, मेरी मशीन्स की कैपेसिटी मैक्सिमम क्या है. तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट दे वर मॉनिटरिंग थ्रू द डैशबोर्ड एंड देन दे डिसाइडेड दिस कि यार अब हमें अपने इस लोड को इन डिफरेंट मशीन्स पे कितना मूव करना चाहिए सो दैट वी कैन डू मिनिमम ओवर टाइम इन अ वीक एंड मीट आवर प्रोडक्शन क्राइटेरिया. सो इस तरह के कुछ KPIs डिजाइन थे जो कि वो सोचते हैं पहले. तो आपने भी अपने पहले बिजनेस प्रॉब्लम को सोचना होता है, उससे रिलेटेड मेन KPIs डिजाइन करनी होती है. एंड देन अगर एक बार आपके KPIs और आपके जहन में कि आपको एंड रिजल्ट क्या डिजाइन करना है, तब तो डैशबोर्ड डिजाइनिंग विल बी द पीस ऑफ केक फॉर यू, जो कि आपने आज देखा. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पर्पसेस की आपके पास चीज़ें और आपने उनको जब प्रॉपर वे में ले जाके एक डैशबोर्ड पे रखना है. द मेन थिंग इज दैट कि उससे आप डाटा स्टोरी क्या प्रिपेयर कर रहे हैं और आप उससे डिसीजन मेकिंग में आपको क्या आसानी पड़ रही है. दैट इज द मेन थिंग. Clear your question? Awesome. So okay, so सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे और फिर ये वीडियोस और सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी. तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन द थिंग्स एंड लेट्स कनेक्टेड विद मी upon the LinkedIn and other platforms for any assistance and different things. So if you want to learn a SQL or a BI or a Power BI or a Tableau, so you वन can. मोर क्वेश्चन. Yep. वन मोर क्वेश्चन, इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मतलब ये लैपटॉप मिलेगा क्या ओके इसको डाउनलोड नहीं और है ये इसका. आप इसके पावर बीआई के डेस्कटॉप वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. पावर बीआई डेस्कटॉप इज फ्री. ट्रायल बेसिस पे होगा या पेमेंट नहीं होगी क्या? नहीं ये डेस्कटॉप वर्जन इसका फ्री है. इसका सर्विसेज वर्जन जो है वो आपको जो है $10 का परचेज करना होता है. लेकिन डेस्कटॉप पे आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं. 60 डेज के लिए आपको सर्विसेज वर्जन जो फ्री भी मिलता है. दोज पर्सन हु आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 एंड ऑफिस 365, दोज हु हैव द लाइसेंस ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स, तो पावर बीआई सर्विसेज एंड पावर बीआई डेस्कटॉप उनके लिए टोटली फ्री है. तो ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ने जो काफ़ी आसानी की हुई है. ओके ओके. Any other questions? Okay, so let's end this session now. और कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस है कुछ भी तो you can connect it with me on using a LinkedIn or you can contact the FTI persons. So we will conduct a meeting and we'll let you know what are the next steps you can do in your career using a Power BI. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Zubair. Hafiz.